What is shifting? चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव पहला इसको शेयर करना पड़ेगा। शेयर दावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम् नमस्कार सभी को, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के इस स्त्रीलोक वर्चुअल लेक्चर सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है मुंबई महाराष्ट्र से बहुत ही प्रथितयश वैद्य एवं रिसर्चर डॉक्टर पालेब सर। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका इस मंच पर, आयुष दर्पण फाउंडेशन के इस प्लेटफॉर्म पर हम सभी आपका स्वागत करते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर नवीन जोशी सर उपस्थित है, जो कि फाउंडर है इस प्लेटफॉर्म के एंड फाउंडेशन के देहरादून में स्थित। तो सर आपको यहाँ पे मैं आमंत्रित करती हूँ। डॉक्टर जोशी सर काफी दिनों के बाद यहाँ पर हमारे साथ उपस्थित है। सर वेलकम। और मैंने आपको बायोडाटा भेजा है सर का, पालेब सर का, इफ यू कैन। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर शिल्पा येरमे जी। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर एच.एस. पालेब, जो एमडी, डीजीओ, डीएफपी, FICOG, GFAM, formerly Honorable Professor of Obstetrician and Gynecology, Grant Medical College, St. George Hospital, Mumbai, and RA Uddar Medical College। साथ साथ मेंबर एडवाइजरी बोर्ड हैं आप, रिसर्च हॉपकिंस इंस्टीट्यूट डायरेक्टर डॉक्टर रवि पालेब्स मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, रिसर्च मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन। और आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। और मैं आपका एक थोड़ा सा बायोडाटा पढ़ के बता देता हूँ। डॉक्टर हनुमंत राव एस पालेब, फाउंडर चेयरमैन ऑफ डॉक्टर पालेब्स मेडिकल रिसर्च फाउंडेशन प्राइवेट लिमिटेड, is born in Polasa, Telangana, India in the year 1938. He graduated in Ayurvedic medicine and surgery from the renowned R.A. Poddar Medical College, Ayurvedic, Mumbai in 1962. Thereafter, he completed MBBS and MD in modern obstetrics and gynecology from the prestigious Grant Medical College, Mumbai. In 1973, he held the post of Honorable Professor at Grant Medical College and also part-time professor at R.A. Poddar Medical College for more than 2.5 decades. He has been a teacher and examiner for undergraduates and postgraduate courses in the specialty of Obs and Gynae in both modern medicine and Ayurveda at Mumbai University over 3 decades. He is the only recognized teacher at the Mumbai University in both modern medicine and Ayurveda faculties. He is a renowned gynecological surgeon, an eminent obstetrician and fertility specialist,
Currently, he is the national professor and visiting scientist to Hopkins Institute of America, physician of Indian origin. Subsequently, in 2008, also visited number of medical schools in USA on invitation and delivered lectures. His relentless research efforts led to finding novel Ayurvedic solution on modern scientific parameters to various ailments of stubborn nature. This has resulted into number of highly popular standardized Ayurvedic formulations, namely Suza, Torknil, Pentaphyte, and others manufactured by Dr. Palip's Medical Research Foundation, a research-based organization which he successfully heads since 1997. Many more research projects and clinical trials are ongoing presently. Dr. Palip has presented and published many research papers in conferences, seminars, and journals, both national and international. The Medical Research Foundation has held more than 100 CMEs to educate modern medicine practitioners, specialists to spread the message of scientific base of Ayurveda. In 2005, a book entitled Scientific Foundation of Ayurveda was authored and published. It received a great acclaim from academicians. Now he proudly presents another book titled Dosha Dhatu Mala Vigyana, an integrated human physiology. This book depicts Dosha Dhatu Mala in the light of modern human physiology. So इस प्रकार से this is the brief introduction of Dr. Hanumant Rao S. Palip, sir. So I welcome to you, sir, in the platform. And your topic is recurrent pregnancy loss, a diagnostic challenge and therapeutic dilemma. So welcome, sir. Thank you, sir. धन्यवाद शिल्पा जी, धन्यवाद डॉक्टर जोशी। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के साथ जुड़ना और आपसे बात करना। ये मूव नहीं हो रहा है क्यों? हाँ। हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि जब शिल्पा जी ने मुझे पूछा कि भाई हम आपकी दवाई वापरते हैं और यूज करते हैं, हमें रिजल्ट्स मिलता है, उसके बारे में भी हमें जानना है, तो मुझे बहुत खुशी हुई। इस बात पे मुझे डॉसन चेट्स की एक कहावत ध्यान में आया, इट इज सिंपली नॉट इनफ टू नो, इट इज टाइम टू नो हाउ। कैसा होना चाहिए, ये ज्ञान तो हमको आयुर्वेद में मिला है, तो उसको समझने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और दिस इज एग्जैक्टली हमारे जो टॉपिक होगा। और जो आपने जो चर्चा किया हमारे जो नया बुक का है दोष धातु मल विज्ञान, बहुत सारे चीज ऐसे हैं दोष धातु में हमें बताया गया है, परंतु ये कैसा होता है ये बताया नहीं गया है। ये समझने के लिए हमने दोष धातु मल विज्ञान का मॉडर्न साइंटिफिक बेसिस से कैसा समझना, ये एक मेरा अनुदान हुआ है। मेरा लिखित ये बुक में कोशिश किया गया है कि कैसा हम आधुनिक साइंटिफिक लैंग्वेज में हम इसको समझ सकते हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, बार बार जो गर्भ का नष्ट होना, और इसको कैसा हम समझे और कैसा इसका इलाज करें, और आयुर्वेद के हिसाब से हम कैसा सोचें, ये हमारा आज का सब्जेक्ट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा हिंदी बहुत इसमें बोलने की जो क्षमता बहुत ठीक नहीं है। अगर कुछ त्रुटि हो तो क्षमा करें हिंदी भाषा में, मुझे आदत नहीं हिंदी में बात करना, लेक्चर देना। शुक्र शोणित आत्मा संयोग ये गर्भ है। मुझे बहुत दिक्कत होती थी, ये कैसा मुझे मेरा विद्यार्थी को समझाया कि मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में जो मैं सिखाता हूँ बहुत आसान था। स्पर्म और एग इनका मिश्रण करो,
और फर्टिलाइजेशन हो जाता है और गर्भ बन जाता है, बहुत आसान था। और शुक्र शोणित आत्म संयोग क्या है, ये समझना, ये समझाना बहुत मुश्किल काम था। उसके बारे में भी मैं आपको समझा दूंगा। जो आज हम जो बात कर रहे हैं, रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, आपको ये समझना जरूरी है कि हमें आयुर्वेद में सिखा गया है कि हमारा मूल तत्वों में से एक तत्व है प्रकृति का अहंकार। हम कोई भी बाहरी चीज को हम अंतर्गत नहीं कर सकते जब तक हम अपने आप को, अहम को रखना हो, तो हम कोई बाहर का चीज को हम अंदर नहीं रख सकते। तो इस हिसाब से कोई भी फॉरेन बॉडी हमारे अंदर आ जाती है तो हमारे इम्यून सिस्टम उसको रिजेक्ट करता है और बाहर निकाल देता है फॉरेन बॉडी को। और सच बात यह है, ये मिराकल है। सर्वाइवल, जो फीटस का जो सर्वाइवल है, ये मिराकल है। नेचुरल जो लॉ है, फीटस नीड्स टू बी रिजेक्टेड बिकॉज फीटस इज ए फॉरेन बॉडी। तो ये हमें समझना है कि जब हम ये जानना चाहते हैं कि रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है और क्यों सर्वाइव होता है, क्यों फीटस रिजेक्ट होता है, क्या इसका पीछे तात्पर्य है, ये हमारा आज का सब्जेक्ट होगा। इसमें आयुर्वेद के हिसाब से कैसा सोचना चाहिए। ऋतु क्षेत्र अंबु बीज, ये मूल मंत्र है आयुर्वेद का, जो गर्भ धारणा के लिए गर्भ संभव सामग्री जो सुश्रुत ने कहा है। तो आपको ये सब चारों चीज, ऋतु माने आपका जो ओवुलेशन टाइम है, क्षेत्र माने गर्भाशय है, अंबु माने पोषक रस धातु है, और बीज माने गैमीट्स हैं। ये सब जो है हमारे जो गर्भ संभव सामग्री है, इन सबको हमें अध्ययन करना पड़ेगा जब हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये समझने के लिए। गर्भिणी परिचर्या का जब प्रयोजन बताया चरक ने, में क्या बताया गया है कि सुप्रजा जनन होना चाहिए और जो शिशु पैदा होगा वो सुजात शिशु होना चाहिए। यही है। तो सुजात शिशु का लक्षण क्या है? रोग, आरोग्य, बल, वर्ण, स्वर, संवहन, ज्ञाति नाम श्रेष्ठम अपत्यम जनयति। रोग का मतलब कोई बीमारी ना हो, और आरोग्य का मतलब एक पॉजिटिव हेल्थ का कंसेप्ट है। मतलब आप जानना जरूरी है आपके लिए कि अरोग और आरोग्य दोनों एक चीज नहीं है, ये दोनों अलग है। बल माने स्ट्रेंथ, इसमें इम्यूनिटी भी आ गया। वर्ण, कॉम्प्लेक्शन, स्वर और संवहन, न्यूट्रिशन, ये सब में उत्कृष्ट जो शिशु पैदा होगा वो शिशु को सुजात, और इससे हम जो पॉपुलेशन होगा वो सुप्रजा होगा। सो दिस विल बी द मोस्ट सुपीरियर इन द रेस। इट्स ए वेरी वेरी यूजेनिक कॉन्सेप्ट जो आयुर्वेद ने बताया। तो ये समझने के लिए हमें 9 महीने के गर्भ में क्या क्या चीज होते हैं। तो पहला जो चीज है, जो 3 फेजेस में हम 3 ट्राइमेस्टर्स बोलते हैं, 3 जो महीने हैं, 3 महीने के 3 ट्राइमेस्टर। सो पहला ट्राइमेस्टर में क्या होता है? 3 फेजेस में पहला ट्राइमेस्टर में जीन इम्प्रिंटिंग, ये बहुत बड़ा विषय है। और दूसरा विषय है ब्रेन डेवलपमेंट। ये जो इंट्रायूट्राइन ग्रोथ, फीटल ग्रोथ मैकेनिज्म्स में, ये हमें जानना जरूरी है। जो लास्ट में है मसल और फैट डेवलपमेंट है, ऑर्गन डेवलपमेंट, ब्रेन डेवलपमेंट, ऑर्गन डेवलपमेंट एंड मसल फैट डेवलपमेंट। ये कैसा होता है? पहले हमें समझे
कि जेनोमिक स्क्रिप्ट क्या है, जीन इम्प्रिंटिंग क्या है, ये पहला हमें समझना चाहिए। हमारे पूर्वज कहते थे कि भाई आप जो पैदा हो गए आपका विधाता है, विधाता ने जो लिखा है ब्रह्मलेख लिखा गया है, जैसे आप कंसीव हो गए तभी लिखा गया आप क्या बनने वाले हैं, क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। ये पहला 6 दिन के अंदर इम्प्लांटेशन का, 6 दिन के अंदर जो पीरियड ऑफ इम्प्लांटेशन है कंसेप्शन के बाद, उसके अंदर होता है। इसमें क्या हुआ, इसमें आपका लाइफ स्पैन डिटरमाइन होता है, जेनेटिक पोटेंशियल आप क्या बनने वाले हो ये हो जाता है। इसको ही ब्रह्मलेख कहते हैं। वो पूरा सारा जीवन भर आपका निश्चित किया जाता है। वो कैसा होता है, जब हम सोचे ये कैसा होता है, ये जीन्स माने क्या है, जीन्स दे कैरी इंफॉर्मेशन। आपको मालूम है आयुर्वेद में बताते हैं पुरुष और प्रकृति, जो सेंशिएंट जो पुरुष है वो ये डायनेमिक है, और जो प्रकृति है वो डायनेमिक प्रकृति, मटेरियल प्रकृति है। जो नॉन मटेरियल जो इंफॉर्मेशन है, जो ज्ञान है, वो ज्ञान और ये जो कर्म करने वाला जो मैटर, ये दोनों एकत्र होते हैं, तब ये जीवन का सृष्टि होता है। जब आप ये सब बात समझ में आएगा आपको, जीन्स कैरी द इंफॉर्मेशन and knowledge for how many billions of years since the life has started in the form of chemical memory in DNA. आपके अंदर जो डीएनए है, उसके अंदर ये डीएनए कहाँ पर है, क्रोमोसोम्स में। तो आप लोगों को तो मालूम है कि 46 क्रोमोसोम्स हैं, उसमें एक्स एंड वाई एंड 44 ऑटोसोम्स होते हैं। इसमें आधा आधा जो होते हैं फादर का और मदर का, दोनों को मिलके जब मिक्स और मैच होके आपका जेनोम तैयार होता है। ये जेनोम का इम्प्रिंटिंग जो आपके कंसेप्शन के बाद होता है, वो पहला 6 दिन के अंदर ही हो जाता है, जिससे आपका जेनोम बनता है। जेनोम इज इन लाइब्रेरी ऑफ द एंटायर नॉलेज इन यू। नॉलेज कहाँ, बाहर से नहीं आता है, आपके अंदर पूरा नॉलेज है। वो नॉलेज को कैसा हासिल करना, चरक में बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है कि आप कहते हैं आत्मा ज्ञान है, आत्मा सौम्य है, तो कोई मंदबुद्धि कैसे पैदा हो जाते हैं। तो उसके जवाब में ये दिया कि उसमें दोष आत्मा का नहीं है, और वो यंत्र जो है मन, उसका दोष है। जैसा कि आपका सॉफ्टवेयर बराबर है, पर आपका जो इंटेल है, जो प्रोसेसर है, वो प्रोसेसर अगर काम नहीं करेगा, माइंड का काम है प्रोसेसर, मनः विमर्शात्मक, वो प्रोसेस करता है ज्ञान, उसके अलावा ज्ञान पैदा नहीं करता। यू आर बॉर्न विथ नॉलेज, और आत्मा इज समथिंग लाइक ए सॉफ्टवेयर। सो एक जब आपको ये समझ में आया, तो जब एक क्रोमोसोम से एक दूसरे से मिलकर आपका जो ज्ञान का भंडार बन गया, दैट इज योर जेनोम। ये ऑर्गेनाइज कौन करता है, सेंट्रियोल इन द स्पर्म। स्पर्म के अंदर एक भाग है, उसको कहते हैं सेंट्रियोल। The centriole is the cause by which it is responsible for organization of chromosomes and giving you the genome. अगर सेंट्रियोल नहीं बराबर काम किया, तो आपका जेनेटिक प्रॉब्लम्स निर्माण होंगे। There will be improper genes which may be responsible for number of the problems, including abortions. We will come to that little later. So this is just for you that
हमारे जो पूर्वजों ने कहा कि बिल्कुल लड़के से बनता है, लड़की से नहीं बनता है। जो आपका जीन ऑर्गेनाइजर जो है, इट्स ओनली इन द स्पर्म, इसमें कुछ तथ्य है, आप समझ सकते हैं। जो आर्तो आग्नेय है और माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो आपके अंदर है। इट्स अ मैटरनल पार्ट दैट गिव्स माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ योर बॉडी, एंड दिस इज आग्नेय। जो मेटाबॉलिज्म आपका सब होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। जो दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, 4 to 14 वीक्स, मतलब 3 महीने के जो पार्ट है, हमने पहला 6 हफ्ते के बाद बात किया, और दूसरा जो भाग है 4 से 14 हफ्ता, जिसके अंदर आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, रेटिना, न्यूरल टिश्यूज। इसके लिए आपके खाने में क्या क्या होना चाहिए कि जिसके अंदर से आपको DHA मिलेगा, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स मिलेगा। इसके लिए हमारे आयुर्वेद में बताया था कि घृतम बुद्धिवर्धकम, विच इज गॉट ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड्स, बट ओमेगा 3 आर प्रिडोमिनेंट। इसके लिए आयुर्वेद का जो ज्ञान है वो कैसा हमें उपयोग हो में आता है, ये समझने की बात है। और उसके बाद जो थर्ड फेज है, उसके अंदर मिड जेस्टेशन में मसल डेवलपमेंट, लेट जेस्टेशन में फैट डेवलपमेंट, ये जो होता है। और आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि हमारे हिंदुस्तानी जो बच्चे हैं उनमें फैट ज्यादा है और लीन मसल बहुत कम है। अगर आप अलग अलग देशों के जो आप देखेंगे जो बच्चे हैं, और आपको ये जान के भी बहुत हैरानी होगी कि पूरा दुनिया में सबसे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं वो हिंदुस्तान में पैदा होते हैं। हमारे एवरेज बर्थ वेट है 2500 ग्राम, एवरेज बर्थ वेट हिंदुस्तान का। पूरी दुनिया का कैसा है? कम से कम 3500 बर्थ वेट। मतलब आप समझ सकते हैं कि इसमें ऑर्गन डेवलपमेंट भी बड़ा होता है, हर चीज, हर टिश्यू बड़ा होता है, और हिंदुस्तान में हर चीज आप छोटा देखते हैं। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हजारों सालों का जो जेनेटिक जो रेवोल्यूशन हो गया हमारे साथ, जीन्स में अल्टरेशन आ गया है, उसकी वजह से हमारे जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन में भी बदलाव आ रहा है। हाउ डू वी डिफाइन? हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस को कैसा डिफाइन कर सकते हैं? कम से कम 3 दफा कंसेक्यूटिव प्रेगनेंसी लॉस अगर होगा, वो कोई छोटे अबॉर्शन होगा, बड़ा मिसकैरेज होगा, मतलब कुछ भी कोई भी तरीके का प्रेगनेंसी लॉस होगा, उसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस, नॉट जस्ट ओनली abortions in 3 months, it may be preterm deliveries or intrauterine deaths. All of this can come under this, where you lose the pregnancy. पर रिस्क ऑफ मिसकैरेज नॉर्मल विमेन में कितना है, ये आपको समझने के लिए आपको about 5% of all normal women also abort. तो उसके लिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। अगर if a woman for the first time comes to you with a history of an abortion, so don't worry about it. अगर कोई पेशेंट आपकी प्रीवियस एक टर्म प्रेगनेंसी हुआ, उसके बाद अबॉर्शन हो गया, उसमें कोई चिंता की बात नहीं है। अगर लास्ट प्रेगनेंसी अगर सक्सेसफुल था, possibility of abortion is only 5%. So therefore there is nothing much to worry. अगर लास्ट प्रेगनेंसी अगर मिसकैरेज था, तो the chances of next pregnancy becoming a miscarriage becomes 19%.
और every one miscarriage adds to the number of more miscarriages, और spontaneous abortions जितने जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा रिस्क बढ़ता है, 25% to 53%। सो ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। और उसका कारण क्या है? और हमारे में ये बहुत इजी है, जब हमें मालूम नहीं पड़ता है कि कारण क्या है। और रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में 43% to 66% केसेस जो मिल रहे हैं, जिनका स्टडी हुआ है, हम बोलते हैं भाई अनएक्सप्लेन्ड, उसका कोई हमारे पास एक्सप्लेनेशन नहीं है, भगवान जानता है, हमें नहीं मालूम। पर आज हम कह सकते हैं क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, क्रोमोसोमल abnormalities in the embryo, genetic factors, they're not the commonest cause, remember। हम पहले जेनेटिक टेस्टिंग नहीं कराएंगे, कोई रिकरेंट प्रेगनेंसी का पेशेंट आएंगे, दिस इज नॉट वेरी कॉमन कॉज, इट इज वेरी अनलाइकली। ट्राइसोमी, मोनोसोमी, पॉलीप्लॉइडी, ये जो अलग अलग क्रोमोसोमल एनॉमलिटीज है, वो इतना ज्यादा नहीं है। दे आर प्रॉब्ली 3.5% ऑफ इंसिडेंस। बट ये दूसरी एक चीज आपको जानना बहुत जरूरी है, आज का जो हमारे जो पॉपुलेशन है, इनमें एजिंग एग, मतलब बहुत उम्र के बाद माँ बाप को लगता है कि हमें बच्चा होना चाहिए, क्योंकि शादियां लेट हो रही है, करियर का प्रॉब्लम है। सो एग्स आर देयर सिंस द बर्थ, और ये एग्स जैसा जैसा उम्र बढ़ता है, बाय द एज ऑफ 29, 50% of quota of eggs are lost. And as a woman reaches the age of 35, the eggs are aged. The chances of chromosomal abnormality is very high. Poor sperm membrane integrity. जैसा eggs में problem होता है, वैसा sperms में भी problem होगा. So therefore, coming back to the subject of egg, ये बीज दृष्टि हम जो सोचते हैं कि sperm और egg roughly about 3.5% इंसिडेंस है। अब हम आते हैं क्षेत्र। बीज का तो हमने समझ लिया, अब क्षेत्र में क्या होता है? लगभग 15% इंसिडेंसेस एनाटॉमिकल कॉज से हो सकता है, क्योंकि जो एबनॉर्मल मुलेरियन फ्यूजन एनोमलीज होते हैं गर्भाशय के अंदर, जो बराबर नहीं बना गर्भाशय, यूट्रस में एबनॉर्मलिटीज है, ये यूट्रस में कोई बीमारी है, फाइब्रॉइड्स है, साइनिकिया है, और किन्हीं पेशेंट्स में जो सर्विक्स इनकॉम्पिटेंट है, सर्वाइकल जो स्फिंक्टर होना चाहिए, इंटरनल ऑस विच डजंट क्लोज प्रॉपरली, सो ये भी एक कॉज है, और जिसकी वजह से गर्भ का नष्ट होना बहुत कॉमन है। तो सोनोग्राफी, हिस्टोग्राफी, लैप्रोस्कोपी, सर्जरी, ये सब अलग अलग रूप से हम इसका ये कर सकते हैं। अब आता है अंबु। अंबु का मतलब हम समझते हैं कि भाई गर्भाशय का अंदर, गर्भ के अंदर पोषण कैसा होता है। अपरा से उसका गर्भ का पोषण किस नमूने से होता है, वो उसमें यूट्रेन आर्टरी का भी पैटर्न्स होते हैं, और उसकी वजह से भी पुअर प्लेसेंटल परफ्यूजन होता है। और दूसरा ऋतु है। ऋतु माने जब जो बीज कोश में जो स्त्री बीज आता है, वो ऋतु के समय में ही बाहर आता है, और गर्भाशय के अंदर आने वाले बच्चे के लिए तैयारी होती है। जब ये तैयारियां अगर बराबर नहीं होती है, उसको हम कहते हैं ल्यूटियल फेज डिफेक्ट। अगर ऋतु सही समय पे नहीं हुआ, ऋतु का कोई प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिसीज है,
इन सब केसेस में भी प्रॉब्लम हो सकता है और देयर कैन बी द लॉस ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसमें हमारे पास अलग अलग किस्म की दवाई यूज होते हैं। क्लोमिफेन साइट्रेट है, एफएसएच, गोनाडोट्रोपिन एनालॉग्स, मेटफॉर्मिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स, अलग अलग मॉडर्न दवाई है। और माइक्रोनाइज प्रोजेस्टेरॉन, ये सब हम मॉडर्न में इलाज करते हैं। आपको बहुत से लोगों को मालूम होगा। हम आयुर्वेद के हिसाब से भी आगे बात करेंगे। Infections, 14.9% of the cases are known to be because of some infections. Now, आयुर्वेद में infections के बारे में एक जगह हम सीखते हैं कि उसके है जातहारिणी। ये जातहारिणी का रेफरेंस मिलता है जहां पर जो आपका हाइजीनिक प्रैक्टिसेस सही नहीं है। Certain professions where the animal blood comes into contact, the animal contact is there. That could be the reason what our Shastras say. Today we find so many diseases like Listeria, Mycoplasma, Chlamydia, Toxoplasma, Rubella, Cytomegalovirus, herpes, syphilis, ये सब अलग अलग बैक्टीरियल, वायरल, फंगल, पैरासाइटिक, ऐसे अलग अलग डिसीज है। So this can cause RPL, recurrent pregnancy loss, and also in some cases, severe congenital anomalies, neurological, eye ear deficiencies, etc. Or bacterial vaginosis भी now is considered to be one of the causes. So therefore, it is important to treat the infections in the vagina. योनिगत व्याधि को भी समझना चाहिए, इलाज करना चाहिए। योनिगत पित्तज योनि व्यापक जो आयुर्वेद में जो बताया है उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। ये टॉक्सोप्लाज्मा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूं। ये पैरासिटिक प्रोटोजोवन ऑर्गेनिज्म है, प्लेसेंटल ट्रांसमिशन होता है। और इसको समझने के लिए हमारे पास ब्लड टेस्ट अभी अवेलेबल है। जिसको हम IgM, IgG के नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? कभी वो इन्फेक्शन है, वो इन्फेक्शन का एजेंट हम देख नहीं पाते हैं बहुत जगह, परंतु उसका अंदाजा हम लगा सकते हैं बाय आइडेंटिफाइंग देयर इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हमारे शरीर के अंदर जो इम्यूनोग्लोबुलिन्स तैयार होते हैं उसको हम जान सकते हैं, उसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं। IgM एक्यूट इन्फेक्शन में होता है, IgG क्रॉनिक इन्फेक्शन में होता है। और इसका जो इलाज था टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी का, आज अवेलेबल है स्पाइरामाइसिन के नाम से। परंतु ये 30 साल के पहले ये अवेलेबल नहीं था स्पाइरामाइसिन। और जो दवाई यूज करते थे वो बहुत डेंजरस दवाई थे, टेरेटोजेनेसिटिक थे, बोन मैरो डिप्रेशन कर सकते। पायरिमिथामिन वाज a drug, so therefore they were drugs which were dangerous, were used without much results. दूसरा है रूबेला। आजकल कंपलसरी स्क्रीनिंग हो रहा है, हम लोग रूबेला का वैक्सीन भी लेते हैं, बच्चे को देते हैं। इसे DNA वायरस ऑफ हर्पिस फैमिली, तो कॉन्जेनिटल इन्फेक्शन से हिपेटोस्प्लिनोमेगाली, हेपेटाइटिस ये सब होता है इसमें। परंतु इसका इलाज हम क्या कर सकते हैं? जो अगर गर्भधारण में होने के बाद हमको कोई इलाज नहीं कर सकते, एसाइक्लोविर इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड, तो इसका इलाज नहीं हो सकता। ऐसा ही हम इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे।
मैंने आपको बताया अहंकार, इम्यून सिस्टम आपके भलाई के लिए बना हुआ है, जिससे जो बाहरी व्याधि, बाहरी चीज को अंदर नहीं आने देना, जिससे व्याधि निर्माण हो, वो नहीं होने के लिए होता है। परंतु इसमें दो अलग चीज हम आपको आगे भी समझाएंगे। ये तो आपके हितकारी अहंकार हुआ, और दूसरा कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग, कोई दवाई लिए, एलर्जी हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, एलर्जी हो, एलर्जिक रिस्पॉन्स आया। ये भी एक प्रकार की शक्ति है जो इम्यून सिस्टम से संबंधित है, एलर्जी। और हम देखते हैं कि पेशेंट के एनाफाइलैक्टिक रिएक्शन हो जाता है, वो इंजेक्शन लिया, आदमी ताबड़तोड़ मर गया, एनाफाइलैक्टिक एक्शन, ये भी हो सकता है। और दूसरा किस्म की जो प्रॉब्लम है, ऑटो इम्यून डिसीज, मतलब ये जो शक्ति है वो अपने आप को भी पहचानती नहीं। जो अहंकार में हम दूसरे को पहचानते हैं, सेल्फ और नॉन सेल्फ, जो नॉन सेल्फ को निकाल देना, उसको बाहर हटाना उसका काम है। और यहाँ पर नॉन सेल्फ को छोड़ो, सेल्फ को भी पहचानेंगे नहीं, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसीज। सो ह्यूमरल और सेल्यूलर रिस्पॉन्सेज डायरेक्ट अगेंस्ट सेल्फ एंटीजेंस ऑफ द होस्ट एक प्रकार है जिसकी वजह से भी गर्भधारण में नुकसान होता है, और ऑटो इम्यून डिजीज से स्पेशली जो क्लॉटिंग सिस्टम अफेक्ट होके प्लासेंटल सर्कुलेशन में नुकसान होता है, और जिससे गर्भधारणा को नुकसान हो सकता है। तो अलग अलग इसमें ये है ल्यूपस एंटीकार्डियल एंटीबॉडीज, जिसके वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये जो है बीमारी क्या है, समझने में हमें मदद मिलती है। उसके हिसाब से अलग अलग जो हिसाब है, ये ट्रीटमेंट है, वो दे सकते हैं। एंटीकार्डियोलाइपिन एंटीबॉडीज, एसएलई, ये सब में प्रेगनेंसी लॉस इज ऑलमोस्ट टू 50 to 75%, समटाइम इवन 96%, वेरी। तो उसके ट्रीटमेंट में आज हमारे पास लो डोज एस्पिरिन है, स्टीरॉइड्स है, हिपैरिन है, बट फीटल आउटकम इतने कुछ खास नहीं है, जिसकी वजह से हम इनके ऊपर बहुत निर्भर हो सकते हैं। वी गेट लॉट ऑफ fetal loss despite of this treatment. आजकल लो डोज एस्पिरिन हैज बिकम वेरी कॉमन, और जिसकी वजह से there are so many side effects also. Heparin also is quite a dangerous drug. Now low dose low molecular weight heparin is commonly used nowadays, so that also can be used, but with definite complications to both fetus as well as the mother. बोन मिनरल डीमिनरलाइजेशन होता है, ऑस्टियोपिनिया होता है, हेमरेज होता है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस इन औषधों से हो सकते हैं। और ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड ल्यूकोसाइड, पैटर्नल ल्यूकोसाइड्स, जब HLA एंटीजन शेयरिंग होता है, वो एक प्रकार की इलाज है। दिस ऑल्सो नॉट वेल रिसीव्ड, ये कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा। आपको इम्यून सिस्टम के बारे में थोड़ा और समझाना चाहता हूं। आयुर्वेद में बड़ा अच्छा सिद्धांत है, सब सम चाहिए, विषम नहीं। ये हर एक चीज में सम है, विषम है। टी सेल्स आपने सुना होगा, इम्यून सेल्स हैं, टी हेल्पर 1, टी हेल्पर 2, TH1, TH2। जब TH1 होता है ज्यादा, वो विषम हो जाता है। इंटरफेरॉन, गामा, इंटरल्यूकिन 6, इंटरल्यूकिन 1, ऐसे जो हम हमें मिलता है एग्जामिन करने पर,
इससे आपको रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस होता है। और T helper 2 TH2 is more or less a summer which gives you interleukin 3 interleukin 10, जिसकी वजह से सक्सेसफुल प्रेगनेंसी होता है। Our objective will be how to increase interleukin 3, how to help interleukin 10, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रोजेस्टेरॉन is supposed to be one of the induced प्रोजेस्टेरॉन इंड्यूस ब्लॉकिंग फैक्टर, जो TH1 को ब्लॉक करने वाला है प्रोजेस्टेरॉन, इसलिए प्रोजेस्टेरॉन हम यूज करते हैं आजकल। और थायराइड एंटीबॉडी से हाइपोथायराइडिज्म इज आल्सो वन ऑफ द कॉजेस, वी शुड रूल आउट इन ऑल दिस केसेस हाइपोथायराइडिज्म। अब हम आयुर्वेद के बारे में जानना चाहेंगे कि कॉन्सेप्ट क्या है। हर एक चीज में आपको एक कॉन्सेप्ट निर्माण करना पड़ेगा, वो कॉन्सेप्ट से आपको समझना पड़ेगा। हम समझते हैं कि रसायन द्रव्य है, रसायन द्रव्य आम्लकी, अश्वगंधा, गुड़ूची, शतावरी, ये सब आपका रसायन है। ये रसायन अल्टीमेटली कैसा काम करता है अगर हम समझने की कोशिश करेंगे, ये तो एक तो पित्त शामक होना चाहिए, एंटी इंफ्लेमेटरी, पाचनीय, और इसको एंटी एजीएस बोलते हैं। और इम्यूनोमॉड्यूलेटरी जो है वो जो प्रकार है वो भी एक प्रकार से काम करते हैं। और ये एंटीऑक्सीडेंट्स क्या है, बेसिकली आपको ये समझना है। एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीजन आपका जीवन है और हम यूज कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। मतलब जब ऑक्सीजन पूरा का पूरा ऑक्सीजन यूज हो, या सिंगलेट ऑक्सीजन जब कंबशन होता है, सिंगलेट ऑक्सीजन निकल जाता है, वो हानिकारक होता है। और ये इसको फ्री रेडिकल बोलते हैं। ये फ्री रेडिकल को रोकने के लिए हमें जो द्रव्य दिया जाता है, रसायन द्रव्य, वो उसको हम जीवनीय बोलते हैं। जीवनीय, बल्य, इम्यूनोस्टिमुलेंट और इम्यूनोमॉड्यूलेटर। सो इम्यूनोस्टिमुलेंट, इम्यूनोमॉड्यूलेटर एस्पेरेगस है, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, विथानिया सोमनिफेरा, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, एंटीवायरल एक्शन है, रेटिकुलर इंडोसिस्टम सिस्टम पर काम करके जो आपको काम करेगा टू गिव यू ऑल। तो इसमें मधुरा रसायन है और कटु पित्त रसायन है। ये दोनों का काम अलग अलग नमूने से होता है, और जिससे हम ये सब जो मॉडर्न जिसने मैकेनिज्म्स हैं, हिमोपोटिक, इंटरल्यूकिन 3 मैंने अभी बात किया था, जो समय है, इंटरल्यूकिन 10 है, वो कैसा मिलता है विथानिया सोमनिफेरा से, ग्लिसरेजा ग्लैब्रा से, टिनोस्पोरा कार्डिफोलिया, ये सब जो आयुर्वेदिक दवा है, ये एक्शंस हम जो मॉडर्न मेडिसिन के जो केमिकल ड्रग है उसकी जगह में हम हर्ब्स यूज करेंगे, और वही रिजल्ट्स हम आपको देंगे, वही चीज हम दे देते हैं। इसलिए हम प्रेगनेंसी में जो कॉम्प्लिकेशन होगा वो क्यों होता है? प्रेगनेंसी इज ए स्टेट ऑफ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, और इसको कम करने के लिए हम रसायन द्रव्य यूज करेंगे, तो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस को काउंटर करेंगे और फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करेंगे। जो फ्री रेडिकल्स कंट्रोल हो जाएगा तो आपका प्रेगनेंसी सर्वाइवल बढ़ जाएगा। सो एनर्जी फॉर सर्वाइवल एंड एक्टिविटी, बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन, बट रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज causes so many complications, mutagenesis, carcinogenesis, atherosclerosis, परंतु कुछ अच्छे काम भी होता है उससे। मेटाबॉलिज्म ऑफ फॉरेन मैटर, स्टिमुलेशन ऑफ द ग्रोथ, मैचुरेशन और डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स, पोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस, एंटीमाइक्रोबियल एक्टिविटी, ये भी सब होता है। तो मतलब हर चीज में कुछ अच्छा है, कुछ बुरा है,
एक कॉइन का दो साइड है, हमें कौन सा साइड चुनना है और उसका उपयोग कितना करना है, ये बुद्धिमान वैद्य को चुनना है, कौन सी चीज कहाँ पर वापरना है। आपका खाने पीने में, वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे ऐसे चीज हैं जो प्रेगनेंसी को सुधार सकते हैं, जैसा गार्लिक, स्पाइनैक, बीट रूट, ऑनियन, कॉलीफ्लावर, पोटैटो, स्वीट पोटैटो, कैबेज, ये जो सब चीज हैं, रेड ग्राम, सोयाबीन्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ये सब चीज में कुछ न कुछ आपके हित के बात हैं, जिसमें विटामिन है, फ्लेविनॉइड्स है, फिनालिक एसिड्स है, टैनिन है। स्पाइसेस में क्लव, टर्मरिक, जिंजर, ये सब में हम क्या क्या चीज हम चुन सकते हैं, ये सब हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हमारे सामने एक दफा ऐसी चुनौती आई, ये कहानी आपको बताना जरूरी समझता हूँ। इट वॉज अराउंड 1980s समवेयर। एक हमारा विद्यार्थी जो एमडी पास होके अपने खुद के प्रैक्टिस स्टार्ट किया, उसने मुझे एक पेशेंट भेजा, बोले सर आप इसके लिए कुछ करो। तो हमने बोला भाई क्या करूं मैं, व्हाट कैन आई डू फॉर दिस पेशेंट। ही सेड शी इज ए पेशेंट ऑफ टॉक्सोप्लाज्मा, शी हैड लॉस्ट 3 प्रेगनेंसीज ऑलरेडी, दिस इज द 4th प्रेगनेंसी, और मॉडर्न मेडिसिन में तो कोई इलाज तो है ही नहीं इसके लिए। तो इस पेशेंट को जब मेरे पास आई, शी वॉज वेल एजुकेटेड पेशेंट, तो उसने एक प्रश्न मुझे पूछा कि डॉक्टर साहब आप जो बोल रहे हैं कि ये आयुर्वेदिक दवाई दे लो, ले लो, आप कैसे मुझे ये बताएंगे कि मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। तो मैंने बोला भाई इतना मैं बोल सकता हूँ, तो इससे नुकसान तो होना नहीं, परंतु फायदा कितना होगा मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई इलाज नहीं है। सुश्रुत में आप जानते हैं कि गर्भ का नुकसान न हो इसके लिए पूरा एक चैप्टर है, और उसमें लिखा है कि मासानुमास कुछ 50 द्रव्य है, पूरा 9 महीने में क्या देना है। तो उसमें से हमने 17 दवाई चुनी। ये 17 दवाई का लिस्ट जब हमने चुना, बेस्ड ऑन सो मेनी फैक्टर्स, उसका रस, वीर्य, विपाक क्या है, उसका मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू में क्या है, क्या उसके बारे में लिटरेचर में क्या है, ये सब समझ के मैंने एक 17 का लिस्ट बनाया। मैंने ये लिस्ट पूरा, वो बोला भाई ये दवाई ले आओ, इसका डिकॉक्शन कैसा बनाना और कैसा लेना, आप चालू कर देखते हैं व्हाट एवर कम्स। तो ऐसा हमने जो शुरू किया था। दिस पेशेंट, after some time, when we checked for her toxoplasma, the concentrations became less. She had a full-term pregnancy, normal delivery. उसके बाद 3 दफा मैंने उसको डिलीवर किया और फाइनली स्टेरिलाइजेशन भी कर दिया वो पेशेंट का। ये पेशेंट के बाद मुझे पूरा यकीन हो गया कि भाई आयुर्वेद में कुछ तथ्य है, इसको हमको आगे बढ़ना चाहिए। So thereafter, I have treated 69 patients of recurrent pregnancy loss with this very same thing. फिर हमारा इसके बारे में रिसर्च हुआ, इसमें स्टैंडर्डाइज ये अपने एक्सट्रैक्ट्स बनाए और ये इसका स्टडी हुआ है, इसमें से क्या बेनिफिट्स है क्या नहीं है मैं आगे बताऊंगा। सो ऐसा करके सब हमारा रिसर्च हुआ। इसमें से 2 हमने दवाई की, सुजात एंड टॉर्सिनिल। ये टॉर्सिनिल का जो मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ द ड्रग्स, 11 ड्रग्स। यष्टि मधु, गुडूची, कंटकारी, बृहति, पिपली, गोक्षुरु, भारंगी, दाड़िम, उशीर, रासना, मंजिष्ठा, ये 11 दवाई है। इसके अंदर हमने देखा भाई क्या फायदा होगा एंटीऑक्सीडेंट से, एसेंशियल अमीनो एसिड से, एसेंशियल फैटी एसिड से,
इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स है, प्रोजेस्टेशन एजेंट्स है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है, कम्बैट लिपिड पेरोक्सीडेशन, इंप्रूव प्लेसेंटल फंक्शन, ये हमारे हाइपोथेसिस था। ये लेकर हमने ये रिसर्च शुरू की एंड वी गॉट द रिजल्ट्स दैट आई विल शो यू। और सुजात का जो हमने बताया कि भाई शतावरी है, मधुर रस है, शीतवीर्य है, ये सब मधुर वाले हैं, और जो टॉर्सिनल के अंदर है जो कटुतिक्त रस प्रधान रसायन, ये विदारी है, श्रृंगाटक है, आम्लकी, बला, अश्वगंधा, यष्टि मधु, अनंतमूल सारिवा, गोक्षुरु। तो ऐसा 9 द्रव्य सुजात में है। तो हमारा फाइनली हमने डिसाइड किया भाई नॉर्मल प्रेगनेंसी में टू गिव ओनली सुजात फ्रॉम द डे वी स्टार्ट सुजात, the day we confirm the pregnancy, Sujat, till 9 months we use Sujat. इसमें कभी भी हम, unless the patient is anemic, we don't add any of the iron, calcium, or any of these things. Only this. The reason is iron given is not tolerated well. Number 1. Number 2, it itself causes oxidative stress to the body. Iron is known to cause oxidative stress. So unless patient is anemic, we refrain from giving this. So हम ये टॉर्च का जो 16 पेशेंट्स का मैंने बात किया था, आप देखिए टॉर्च पॉजिटिव अगेंस्ट टॉर्च नेगेटिव, we did a study. उसमें टॉक्सोप्लाज्मा कितना थे, टॉक्सोप्लस अदर्स कितने थे, CMV कितना था, रूबेला कितना, हर्पिस कितने वगैरह, वो सब है। पर हम आपको जो फाइनल रिजल्ट बता रहे हैं कि इसमें स्टडी केसेस जो था, लाइव बर्थ्स ऑलमोस्ट 95%, reproductive wastage was only 5%, and requirement of lower segment C section was also less in cases of steady cases where we use Sujat torsional. That was very interesting because most of the others were small babies, therefore they required caesarean section. So that's how in the control cases there are more caesarean sections. Now fetal distress was much less in these cases because fetal weight was good. And fetal weight less than 2,500 grams, fetal weight more than 500 grams was very significant. 2,500 grams के ऊपर जो weight था study cases में बहुत ज़्यादा था. So that is the reason why the fetal distress was very low. So जब हमने खाली सुजात का एक स्टडी किया, बहुत बड़ा स्टडी था, 900 पेशेंट का स्टडी, 577 cases were given iron, calcium and all that, whereas 378 patients were given Sujat plus whatever the normal treatment in the same hospital, same setup, and we found the results were very interesting. Incidence of severe PAH in study case and in control cases. In control cases, it was more than, in one case here to 11 cases there. Eclampsia nil, there were 3 cases of eclampsia. No PAH in 339 patients, and almost 89.8 patients were not having, in compared to 73% patients. So we could control PAH. I can assure you in my practice, I have hardly ever used antihypertensives in primaries in my last so many years of practice with Sujat. Then I can assure you that you will not require antihypertensives when you are treating these patients. Outcome of pregnancy, आप देखिए, birth weight 2.82 kgs
in the study group where Sujat was given. In control cases, 2.53 kgs. So there was almost difference of 300 grams. So that is very, very significant. When we in India, आपको ये मालूम है कि हिंदुस्तान में is supposed to be diabetic capital and hypertensive capital. वजह क्या है? तो ये वजह का जब पता लगा कि all those who are today hypertensive, if you go to their birth report, they were all low weight babies. They were low weight babies. They were not normal weight babies. So therefore, low weight babies, low birth weight babies are the cause of many diseases to come in the middle ages of one's life. So what is the prevention of the hypertension and diabetes? That is to improve the Garbhini Paricharya, the class of Garbhini Paricharya, where we look after the patient properly and improve their outcome by improving the fetal weight. And where Sujat could be the Dravya Rasayan. We have 3 Rasayans, Ahara Rasayan, Achara Rasayan and Dravya Rasayan. ये तीनों चीज हम गर्भिणी परिचर्या में यूज करना चाहिए और जिससे हमारे बच्चे जो बनेंगे वो सुजात बच्चे बने और हमारे श्रेष्ठम अपत्यम का जो प्रोग्राम है वो आगे हम ले सकेंगे। इसके लिए हमने जो 16 पेशेंट के स्टडी किए हैं और 905 पेशेंट के स्टडी किए हैं, इसके ऊपर डिजर्टेशंस भी एमडी स्टूडेंट्स मॉडर्न मेडिकल कॉलेज में किए हैं और इसका जो पब्लिकेशंस भी हुए हैं और बीएआरसी जैसे संस्था में इसका सेल डिवीजन सेल बायोलॉजी में स्टडी हुआ, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई में इसका स्टडी हुआ, सो दैट अलग अलग जगह से हमें ये कंफर्मेशन मिला कि भाई ये कैसा काम करता है, क्या बेनिफिट्स है। और उसके बाद जेजे हॉस्पिटल में हमारे जो रजिस्ट्रार थे, दे गॉट द बेस्ट अवार्ड फॉर दिस स्टडी। सो ऐसा करके एंटीनेटल केयर का स्टडी में और काफी सारे हमारे पब्लिकेशंस हैं, इंटरनेशनल पब्लिकेशन हैं। सो अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल्स किए गए हैं। इवन पोस्ट marketing also we have done the studies in major cities, those number of the patients with MD and DGOs and Ayurvedic qualified doctors. So to give in short the whole concept of Sujat and Toshnil is almost a 40-year-old saga, unending, and still we are working on it. So that is how the whole thing is. Your traditional knowledge base appears to be the most valuable resource that India has. If you look at the knowledge contained in Ayurveda and other Vedic traditions, you will understand the whole system that has been greatly undervalued at this time. This body of knowledge, I feel, has the great potential to transform India and world. ये कौन कह रहा है? Chief Scientific Officer, IDNA testing, John Fagan. This is 2002. और ये नेसेसरी है कि हम जो आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है, हमें आयुर्वेद पर पूरा विश्वास होना बहुत जरूरी है। हमें एक विद्या दी गई है और ये विद्या को कैसा हम यूज करें और इस विद्या को कैसे हम आगे बढ़ाएं और इनको लोगों को समझाने के कैसे नमूने से समझाएं कि ताकि मॉडर्न वर्ल्ड में आयुर्वेद का स्थान बना रहे, ये बहुत जरूरी है। धन्यवाद। और आपके कोई प्रश्न हो तो मुझे आंसर करने में बहुत हर्ष होगा, आप प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद। Thank you, sir. Thank you for your detailed explanation about all the things related to infertility. Thank you very much. There are few questions. I think you can see it easily, or shall I ask you directly, sir? 1 minute. There are some
Yes. Okay. Now, सर डॉक्टर रचना जी ने पूछा है दैट प्लेसेंटा प्रीविया के केस में या क्या विचार करें? Rachna Tripathi, dosage of torsion and Sujat for prevention and also in pregnancy. Prevention of what? आई थिंक मैं आपको सभी को अनम्यूट का ये देती हूँ, सो यू कैन हैव डायरेक्ट. She can ask the question properly. Yes, yes, yes. Just a minute. So first question is that. Dr. Shilpa, I can't see where it is. सर प्लेसेंटा प्रीविया के केस में क्या विचार करें? पित्तशामक चिकित्सा और व्हाट लाइक? Yeah, sir. Ayurveda practitioners are much more, and so they. नहीं, देखिए उसमें पित्त का प्रश्न आता ही नहीं है. देखिए कि प्लेसेंटा प्रीविया इज एन इमरजेंसी. प्लेसेंटा प्रीविया जो जैसा समय बढ़ता है वैसा वो प्लेसेंटा ऊपर चला जाता है. आप तो जानते हैं, अगर वो प्लेसेंटा अपनी जगह में स्थित रहा, ऊपर नहीं चला गया, तो उसका मतलब ये है कि इट इज स्टक. सो इट हैज टू बी रिमूव्ड ओनली सर्जिकली. इट्स ओनली वे टू सेव द मदर इज बाय सर्जरी. देयर इज नो अदर वे. कोई पित्त शामक चिकित्सा से आप कंट्रोल नहीं कर सकते. ओके सर. सर टॉर्सनल के बारे में बताइए कि हाउ वी कैन यूज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और फॉर रिकरेंट लॉसेस, एंड अगर पेशेंट एक बार कंसीव हो जाता है तो उसको कंटिन्यू कितने महीने चलाना है? हमारा प्रैक्टिस ये रहा कि अगर देयर इज अ हिस्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी लॉस, सो वी स्टार्ट द टॉर्सनल बिफोर द प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी alone. We don't give Sujat at that time. We give only torsional. और ये torsional till she conceives she can take, there is no harm. And once she conceives, add torsional and Sujat together. This is what the. And torsional का एक और भी एक एडवांटेज है. काफी जो आजकल के जो IVF कर रहे हैं लोग इसका यूज कर रहे हैं कि इम्प्लांटेशन का फैसिलिटी बढ़ जाता है. इम्प्लांटेशन becomes it helps the implantation process. ये भी नया जानकारी है. जैसे लोग यूज करते हैं तो नया जानकारी मिलता जाता है. So there are quite a few IVF specialists who are using for implantation benefit. Yes sir. Okay, thank you. आप अनम्यूट कर सकते हैं सारे लोग. मैंने अनम्यूट को ऑप्शन दिया है, so please ask directly. प्रणाम सर. प्रणाम, बोलिए. हाँ जी, थैंक यू सर फॉर अ नाइस लेक्चर. सर एक आपने जो बोला था कि सेंट्रियोल ऑफ स्पर्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, तो उसे सर थोड़ा एलैबोरेट कर देंगे इसे थोड़ा? तो स्पर्म का आप जानते हैं कि देयर इज अ हेड, देयर इज अ मिड पीस एंड देयर इज अ टेल. जी. उसमें जो मिड पीस के अंदर सेंट्रियोल होता है. जी. दैट सेंट्रियोल अगर सही है तो ये आपका जो जेनोम सेटअप, क्रोमोसोम्स जो ऑर्गेनाइज होगा वो सही होगा. अगर इन सम केसेस वेयर द सेंट्रियोल इज एब्सेंट, उनमें गर्भ संभव नहीं है. जैसा हम बोले ना भाई, आत्मा के बगैर गर्भ नहीं हो सकता. तो ये वही बात है कि अगर आपका जो ज्ञान का कर्म है वो ज्ञान अगर स्थापित नहीं होता है तो मैटर का कोई मतलब नहीं रहता. सर इसमें सर मतलब ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट डज इट मीन बाय ऑर्गेनाइजेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब ये मेरे को थोड़ा क्लियर नहीं है. अब आप समझिए कि जब फर्टिलाइजेशन होता है जी. तो किस चीज की होती है? एम्ब्रियो में ऑलरेडी देयर इज ओनली half chromosomes are there. In egg there are half chromosomes are there. जी. Sperm also there are half chromosomes. The mature egg is having half the number of the chromosomes of the original. जी. So 23 chromosomes होते हैं इसमें. 23 chromosomes sperm में ये दोनों मिला के आपको मिलेगा. You will get the whole composite 46 chromosomes. Either it may be XY or XX or whatever the way, it becomes 46.
क्रोमोसोम्स। सो ये जो सेटअप है वो क्रोमोसोम का सेटअप, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड बाय द एक्शन ऑफ द सेंट्रियोल। अगर सेंट्रियोल में डिफेक्ट है, देयर आर सम स्पर्म्स विद a defect in centrioles, this does not happen, hence the pregnancy fails. सर आपको तो अभी जो से जो एम्बिगुअस प्रेगनेंसीज होती हैं, ट्रिपल एक्स वाई एंड मतलब दे आर ऑल ड्यू टू they are all because of, हाँ, they are all because of mismatch। अभी क्या होता है, ये सब मिल जाते हैं, फिर वो मिक्स मैच होता है ना। ये आपकी माता जी का जो क्रोमोसोम सेटअप है, आपका क्रोमोसोम सेटअप में फर्क है, आपका जनोम अलग है, आपका माता पिता का अलग है, समझे ना। तो इसमें जो वही वजह से इफ देयर इज एबरेशन, एक प्रोसेस बराबर नहीं हुआ, तो यू विल गेट डिफरेंट जेनेटिक प्रॉब्लम्स। सर तो इसमें पॉलीप्लॉइडी होगा, देयर इज so many other types of the problems, there is a missing some gene, there is addition excess of that, ऐसा अलग अलग क्रोमोसोम्स का प्रॉब्लम हो जाता है। सर एक बोलिए। और इसमें जैसे कोई जीन रिलेटेड किसी भी तरह की कोई जो हेरिडिटरी आगे कोई मतलब डिजीजेस और कैंसर्स और समथिंग कोई भी पैथोलॉजीज ऐसे ट्रांसफर होती हैं, तो क्या उसमें भी यही रीजन रहता है स्पर्म के सेंट्रियोल का ही, क्या उसमें और भी फैक्टर्स मतलब एक्ट करते हैं, क्या रहता है? नहीं, एक सेंट्रियोल हैज गॉट ए रोल फॉर दैट पर्टिकुलर पीरियड ओनली। ओके। सेंट्रियोल का खाली ये मिक्स मैच जो होता है उतना ही उसका काम है, उसके बाद तो सेंट्रियोल रहता नहीं है ना। सेंट्रियोल डजंट एग्जिस्ट देयर आफ्टर। मतलब वो तो पीछे से ही, मतलब वो अगर वो जो कैरी कर रहे हैं बीज में, मतलब वो तो पीछे से ही आ रहे हैं, इसलिए तो सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ उनको करना है क्रोमोसोम्स को। एग्जैक्टली। ओके। तो सर मतलब इसमें अगर ऐसे कोई एम्बिगुअस चाइल्ड पैदा होता है, वो मतलब उसमें एम्बिगुअस चाइल्ड पैदा होगा, वो जेनेटिक नहीं, रीजन जेनेटिक नहीं है, वो डेवलपमेंटल फैक्टर्स है। एम्बिगुअस सेक्स का जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं ना, इट्स नॉट ऑलवेज जेनेटिक, देयर मे बी सम अदर कॉज, देयर मे बी डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स आल्सो। सो मुलियरियन डक्ट का जो प्रॉब्लम है, if development is not proper, if ये सब जो डेवलपमेंटल प्रॉब्लम्स है, मतलब देयर आर embryological। सम एम्बिगुअस सेक्सेस ड्यू टू डेवलपमेंटल फैक्टर्स एंड सम Yeah, आर ड्यू टू क्रोमोसोमल। आई मीन टू exactly. से Yeah. जिनमें क्रोमोसोमल ऐसा कोई हुआ जिसमें क्रोमोसोम्स की वजह से एम्बिगिटी है, उसमें अगर जो पेरेंट्स है, इट मींस हम उसको ये लेके चलते हैं कि जो मेल का जो उसका स्पर्म का सेंट्रियोल का उसके रीऑर्गेनाइजेशन जो उसका काम था उसमें कुछ गड़बड़ रही, मतलब स्पर्म में ही कोई दुष्टि मानेंगे, मतलब एक ओवरऑल। तो नेक्स्ट और उसका जो बच्चा उनका होना है, तो उनमें भी उसको रूल आउट करने के लिए कि उसमें भी कोई ऐसे चांसेस ना रहे, तो स्पर्म का उसको उसके फादर के स्पर्म की वो क्या करेंगे, मतलब उसको उसके शुद्धि करेंगे, मतलब शुक्र शुद्धि के लिए करेंगे कि वो। आज तक उसका कोई निचोड़ मिला है ऐसा मुझे मालूम नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। विद द लॉस ऑफ सेंट्रियोल जो नहीं है स्पर्म के अंदर, उसका कुछ इलाज है ये मैं नहीं जानता। नहीं, लॉस ऑफ सेंट्रियोल नहीं सर, मतलब कि सेंट्रियोल का फंक्शन प्रॉपर नहीं हुआ, उसके वजह से एम्बिग्यूटी हुई क्योंकि उसने रीऑर्गेनाइज जो करना था वो प्रॉपरली नहीं अभी किया। अभी वो जो होना था Yes, हो yes. गया। अगर अगर फ्यूचर के लिए कुछ करना चाहिए, हाँ जी सर, नेक्स्ट मतलब आगे बच्चे वो कंसीव करते आगे हैं बच्चे के लिए उनके लिए कुछ वाजीकरण का जो हमारे पास द्रव्य है उसको यूज करके स्टडी करना जरूरी है कि Yes, sir. इन सच केसेस वी शुड ट्राई एंड स्टडी। जो आप स्टडी करेंगे तो आपको उसका तथ्य मालूम पड़ेगा। आज तक ऐसा कोई स्टडी नहीं है। सर एक डॉक्टर प्राजक्ता जी ने एक सवाल पूछा है, इफ पेशेंट हैज हाई लेवल ऑफ IgG एंटीबॉडीज ऑफ टॉर्च इन्फेक्शन, इज इट सिग्निफिकेंट? ऐसा है कि IgG is only telling you there was a past infection. Today that infection is not there. आपको समझ में आया कि there is no such thing like now, इसलिए आज IgG को कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है। जो हमने जो टॉर्च नील का जो बात किया है, टॉर्च इन्फेक्शन तो अलग हो गया है,
some infections can be controlled with these herbs. We know today that herbs control the infections. There's no doubt about that. That apart, Parantu, all of the cases which we see are not necessarily because of infections. IgG is not important at all. Is only IgM agar hai, that shows the active disease. Yes, sir, definitely. Dr. Prajakta, is it okay or you want to ask something? एक सर यही इसी क्वेश्चन में एक और जो ये जो आईजीजी वाला है सर, मतलब आईजीजी आप बोल रहे हो कि वो पास्ट इन्फेक्शन को सिर्फ रिप्रेजेंट करता है, लेकिन सर अगर उस टाइम पे पहले कभी भी हुई होगी, हमें आप सिर्फ करवाने से पता चला कि बॉडी में कभी ना कभी हुई थी वो इन्फेक्शन, ठीक है, लेकिन सर उसको ट्रीट तो नहीं किया गया था, उसके लिए कुछ किया नहीं गया, तो मतलब इसका ये तो भी एक मतलब निकलता है कि वो बॉडी में कहीं ना कहीं परसिस्ट करती है। नहीं, आजकल रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस में now today people don't consider this as a very, very important problem. Torch infections are more now considered in terms of the congenital anomalies in the babies, which I have talked during my talk. Some congenital anomalies are known to happen because of this. So treatment hona zaruri hai. So I think we can use them to prevent any such things in the future. That's all. Yes, sir. What kind of precautions and medications हम लोग suggest कर सकते हैं sir for second pregnancy, second chance? मेरे ख्याल से जो प्रेगनेंसी लॉस के बाद अगर आप कह रहे हैं तो मैंने आपको बताया कि we start with torsional. Once she conceives, we add Sujat and continue till 9 months so that it goes without any complication. Yeah, in second pregnancy too, we can use both the combinations. Yeah, without infection. Yeah, it's very good. If there is even in normal pregnancy, instead of starting with all iron and all these, just give only Sujat. आप खाली सुजात से चालू करिए. अगर इनको कोई एनीमिया हो तो ही आयरन दीजिए, बाकी आयरन देने की जरूरत नहीं है. Yes, okay. Dr. Shruti, please. और दूसरी एक चीज है, नहीं, दूसरा एक चीज आपको समझना चाहिए कि जितने हम आयुर्वेदिक हर्ब्स यूज करेंगे, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आपकी जो हर्ब्स के अंदर भरा हुआ है, सो ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी ट्रीटमेंट. तो आपको ये यूज करिए तो बहुत बढ़िया होगा. ओके सर. सर सुजात का रोल कुछ है क्या, लाइक आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी में एंड पीआईएच जो कि आईयूजीआर? आईयूजीआर, यस, इट विल प्रिवेंट आईयूजीआर. अभी तक मैं वही बात कर रहा था आपसे. जो वजन बढ़ाने का जो है 200 ग्राम का जो आपको डिफरेंस दिखाया, 284 ग्राम, नियरली 300 ग्राम का जो आपको डिफरेंस मैंने दिखाया, ऐसे केसेस में आप देख सकते हैं कि यू कैन prevent IUGR, and I have seen in my own practice there is no case of IUGR I have seen for a long time. So if you don't mind, my question, good evening. My question was ki if you have a patient with RH incompatibility, which is leading to PIH, which is leading to IUGR due to some uterine artery deficiency. These are two different things. RH इनकम्पेटिबिलिटी अलग है, ये जो ब्लड सप्लाई का चीज अलग है. These are two different things altogether. Don't mix them up. RH इनकम्पेटिबिलिटी और ये दोनों एक नहीं है जो आप बात कर रहे हैं. You are confusing between the two. RH इनकम्पेटिबिलिटी में आपको जो एंटी-डी देना है, आपको एंटी-डी देना है. Sir, in spite, actually I had a patient with RH incompatibility with 3 consecutive pregnancy loss. That means she has already got antibodies. You can't neutralize those antibodies which are already formed. आज क्या है? You have to prepare the patient so that the patient does not carry antibodies. So उनका antibody, इसलिए हम antibody test करते हैं कि भाई whether this person has got antibodies or not. Sure, sir. RH जो positive husband होगा, if the husband is RH positive, then you check for RH antibodies in the wife. You understand?
अगर Yes, sir. RH एंटीबॉडीज अगर वाइफ में स्ट्रांगली पॉजिटिव है तो प्रेगनेंसी सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट प्रॉब्लम. Thank you, sir. Dr. Prajakta, please, your question. Are you there? Yes, yes. Sir, I wanted to ask, nowadays there are many doctors who are doing rubella IgG test before planning the pregnancy. And if the report is negative, then they give rubella vaccine. And then pregnancy is delayed for more 3 months. So what is your opinion on this, sir? जैसा आपको मैंने बताया कि नॉर्मली दिस रूबेला इज ऑलरेडी गिवन बिफोर इन दिस थिंग. If rubella vaccine was not administered in the childhood, so it is imperative to give it. It's good. And during that period of 3 months, it is better to avoid pregnancy because the viral infections are a problem, no? Yes. So I think, yes. Dr. Sapnaji, please. Dr. Anju? Sir, so we can give this torsional in RH incompatible patient to conceive, or means it's a different factor. We can't consider this in RH incompatibility patient. Will you please repeat? I didn't get you properly. Is torsional RH incompatibility has to be treated in a different way altogether. You have to. You cannot depend on the medicines. It's an inborn problem, no? Yes. Okay, sir. So I think, Right. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you very much. I think last question, Dr. Ashaji, please. And sir, please tell us about your further planning. Further planning. Because torsional quite common daily. There is a discussion, gynecological discussion at this forum at 6 p.m. and we discuss daily at least one case of this torch positive and torsional रोज हम लोग prescribe करते तो जैसे ही मुझे पता चला तो I just called to you. Dr. Asha ji, last question. What will be the line of treatment in patients having decreased uterine muscle tone due to the multiple pregnancies? Sir, can you say something about this question? Increase muscle tone. Yeah. Muscle tone बढ़ाने के लिए आपको एक्सरसाइज करना पड़ेगा, प्रोटीन खाना पड़ेगा. Yeah. Something different, yeah, from your gallery, from your point of view. Well, I think आयुर्वेदिक रसायन चालू रखना चाहिए जिससे आपका मसल पावर इंप्रूव हो जाता है. आयुर्वेदिक रसायन are good. Yeah, definitely, sir. Yes, thank you. तो मैं समझता हूँ क्या है, my book which I have written recently, जो दोष धातु बल विज्ञान, बहुत सारे लोगों को पढ़ते हैं दोष धातु, परंतु क्यों क्या समझ में नहीं आता है. जैसा कि आप जानते हैं कि शुक्र मज्जा से बनता है, तो बहुत सारे हमारे आयुर्वेदिक विद्वान हैं, वो बोलते हैं कि भाई शास्त्र में कहा है और इसलिए हम मानते हैं, पर ये भी जानना जरूरी है क्यों कैसा. अगर ये सब हम आपको जानना है, बहुत सारी चीज हैं, तो मेरा ये जो बुक है दोष धातु बल विज्ञान, आप अगर पढ़ेंगे, और इट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन Amazon और किंडल पर भी है, इज अवेलेबल. You can try दोष धातु बल विज्ञान by Dr. H.S. Palep. I think that will give you answers to many of your questions which are bothering you, but you don't want to either accept them or you don't want to answer them. So you feel you are helpless. तो इसके लिए आपको, मुझे लगता है कि आपको ये पढ़ना चाहिए बुक, और आपका फीडबैक मैं बहुत पसंद करूंगा. आप पढ़ के आप बताएंगे भाई आपको क्या बेनिफिट हुआ. Yes, sir, definitely. सर, एक क्वेश्चन है. हेलो, गुड इवनिंग सर. सर, क्या ब्लाइटेड ओवम के केस में भी टॉर्शनल और सुजात सर सेम इफेक्ट करेगा? किसमें? सर, ब्लाइटेड ओवम हो रहा है, अगर बार बार प्रेगनेंसी हो रही है
तो ब्लाइटेड उसमें वोम का केस उसमें है। उसमें देना चाहिए ब्लाइटेड वोम में. You should try this. You should try this. That is what you should do. You should Okay. use. Definitely. Thank you, sir. Thank you very much for the new insight in this term, in this subject. And I call upon Dr. Anjana Saxena, who is the Associate Professor in Stree Rog Department in Varanasi Government College. Dr. Anjana ji, please. नमस्कार. नमस्कार मैम. नमस्कार सर. बहुत अच्छा लेक्चर था आपका आज. एक्चुअली सर टॉर्सनिल के बारे में हम लोग बहुत पहले से जानते हैं. जब हम बीएचयू में स्टडी कर रहे थे तब से मैडम लोग भी, हमारे गुरु लोग भी इसको बहुत प्रमोट किया करते थे, क्योंकि एक तो आयुर्वेदिक मेडिसिन है और इफेक्ट. Good. Thank you. Thank you. मैम आपकी वॉइस कट रही. डॉक्टर अंजना जी, योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. Okay. Sir, can you put the address link of Amazon in the chat box? Just write my name Yeah. and it will come. Okay. The Dosha Dhatu Mala Vigyan, Integrative Yeah. Human Physiology. The Okay. title, you will get it. Yes. Okay. Yes. Thank So, you. Thank you. Yes, thank you all of you, all the doctors. Yes, ma'am. Ma'am, please. नहीं सर, थैंक्स ही कह रही थी मैम, कुछ नहीं. थैंक्स अ लॉट. Yeah. Okay. चलिए सर, थैंक यू वेरी मच. आप इतने सीनियर फैकल्टी होकर भी आपने बस एक मेरे जस्ट एक आस्क पे आपने यहाँ पे टाइम दिया, समय दिया. एंड थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कोऑपरेशन एंड काइंड वर्ड्स. एंड आई थिंक आप एक नया होप हो आयुर्वेदा के लिए, बिकॉज आई थिंक टॉर्सनिल इज द फर्स्ट सच टाइप ऑफ tablet. Yeah. So thank you, sir. And Welcome. keep Welcome. updating, sir, with your products too. Yeah. Thank you. Anytime you can go to the website, you will get all the products. Okay. Thank you, sir. Thank you. Really nice. Thank you. Namaste.